clear? Yes, sir. Is it clear to you, salt bridge? Yes, sir. हो गया? तो लिखो salt bridge is an inverted U-shaped tube. An inverted U-shaped tube which contain, ये पूरा लिख लो आगे, tube, T-U-B-E, tube, which contains a paste of agar-agar containing inert electrolytes like KCl or KNO3, etc. An inverted U-shaped tube which contains a paste of containing inert, I-N-E-R-T, inert electrolyte like KCl, KNO3, etc. Okay है? अब लिखो functions of salt bridge. First is it connects the two half cells. That's why the word bridge. Connects the two half cells. Second, two half cells. Second, it maintains electrical neutrality. It maintains electrical neutrality in the electrochemical cell. If the electrons have to flow from one half cell to another half cell, what medium they are going to use? The copper wire. इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने का तो ये मीडियम है ना. बट अगर इस हाफ सेल से आयन ने इधर से इधर जाना है, इट इज डन बाय द सॉल्ट ब्रिज. सो लिखो, whereas electrons can flow in the external circuit, ये वाला, electrons can flow in the external circuit through the copper wire. The ions from one half cell to another, whereas ions from one half cell to the another can flow through the salt bridge. Can flow through the salt bridge. Connecting the two half cells, maintaining electrical neutrality, and third one, providing a medium, providing a wave, providing a path through which the ions can migrate. Okay hai? The salt bridge is clear to everyone? Cotton plug का काम है just so that solution इतना ज़्यादा enter ना कर जाए, just a bit of blockage, right? अब मुझे बताओ, except for everything, इस half cell को देख के anything you want to say? आपको देखो, जो सबसे पहला half cell कराया था उसमें zinc क्या act कर रहा था? Anode. यहाँ पे zinc क्या act कर रहा है? So I just want to say that zinc does not have a birthright of being anode. मैंने जिंक बनाया, 2 बार बनाया, जिंक एनोड बना दिया, तो आपके माइंड में ये नोशन नहीं आना चाहिए कि जिंक एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमेशा ही एनोड एक्ट करेगा. जिंक कैन आल्सो एक्ट एज, सो दैट्स व्हाई वी से
the tendency to lose or gain electrons is a comparative tendency, is a relative tendency. Zinc may lose electrons, zinc may gain electrons. It will only depend it is connected to which half cell. राइट है ये, ठीक है। अब हमने जब भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रही है तो आई कैन नॉट बी ड्रॉइंग दीज डायग्राम्स अगेन एंड अगेन, इट्स टेकिंग सो मच ऑफ द टाइम। सो वी हैव अ इजी वे आउट। इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अब मैं रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं इन अ नोटेशन। राइट डाउन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। Representation of an electrochemical cell. So I will go with this example only. तो जो electrochemical cell आपके सामने बना हुआ है इसी को हम represent कर रहे हैं। देखना Mg2 पॉजिटिव, राइट। बीच में आएंगी दो लाइंस which represent, अब मैं कहां पहुंच गया, कैथोड में। और मैं देखो कैसे लिख रहा हूं, Mg लेफ्ट में है तो Mg पहले लिखा, Mg2 पॉजिटिव बाद में है तो बाद में लिखा। अब उस हाफ सेल में देखो Zn2 पॉजिटिव पहले है, सो Zn2 पॉजिटिव विल बी रिटन जो भी इसकी कंसंट्रेशन है एंड Zn सॉलिड, और जो भी इसकी कंसंट्रेशन है। द वेरी हाफ सेल विच इज ड्रॉन हियर कैन बी वेरी सिंपली रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। अब जो लेफ्ट में लिखा गया वो एनोड है। इन दिस रिप्रेजेंटेशन द इलेक्ट्रोड विच इज written the very first is anode, the second one is, and this represents the salt bridge. ये काम की चीज है। This is what is going to be used. क्लियर आ रहा है ये? सो देखो पहले देख लो सब कुछ। 0 से +2 जा रहा है, ऑक्सीडेशन है ना, तभी तो इसको ऑक्सीडेशन आप बोल रहे हैं। और ये +2 से there is decrease in oxidation number, that's why we are calling it as reduction. Mg then Mg2 positive ब्रैकेट में C1 the concentration जो 1 मोलर हो सकती है, 0.1 मोलर हो सकती है। C1 and C2 they represent the molar concentrations. Everybody knows what is molar concentration? क्या है molar concentration? Number of moles per liter of the solute per liter of the solution. Clear हुआ ये? करेंगे दो क्वेश्चन इस पे ट्राई। Now what we are going to do is I am going to represent an cell और आपने उसके रिएक्शन लिखने हैं। कॉपर सॉलिड changes into copper 2 positive 1 molar concentration salt bridge, Ag positive concentration again 1 molar Ag solid. ये half cell है, not half cell, this is the complete cell. अब इसके लिए आपने reaction at anode, reaction at cathode and the full cell reaction. For the cell represented in front of you, write down the reaction at anode, cathode, and the full cell reaction. एनोड का रिएक्शन, फिर कैथोड का रिएक्शन एंड देन द कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन। कर दिए? ऐसे ट्रांसफर कर दो इसको। ये एनोड है, ऐसे लिख दो कॉपर एरो लगा के Cu2 पॉजिटिव। कैथोड लिखना है तो Ag पॉजिटिव एरो लगा के Ag। सो सी द रिएक्शन एट एनोड, कॉपर चेंजेस इनटू
जब आयन लिखने हैं तो आगे एक्वस लिखने की आदत डालनी है। मेक अ हैबिट ऑफ दिस। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? देन व्हाट अबाउट सिल्वर? देखो पहले तो मैंने ऐसे लिख लेना है Ag पॉजिटिव और बाद में आ रहा है Ag ये। अब बताओ व्हाट शुड आई डू? Ag एक्वस है, यहां पे सॉलिड, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन्स। याद है लास्ट ईयर बैलेंसिंग? आई मल्टीप्लाइड दिस हाफ सेल बाय 2। क्या बन गया? ये 2 और ये भी 2 बन गया ना। क्या बन गया? कॉपर सॉलिड प्लस 2 Ag positive aqueous changes into copper 2 positive aqueous plus understood, because number of electrons lost and gained should be equal in an balanced reaction। किसी भी रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अगर 2 लूज हो रहे हैं तो गेन भी 2 होने चाहिए। अब कॉपर इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स बट एट अ टाइम 1 सिल्वर इज ओनली एक्सेप्टिंग 1। सो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं तो ये 2 बनना पड़ेगा एंड दैट्स व्हाई यू आर मल्टीप्लाइड विद 2। ओके, now we'll do the opposite. I will give you a balanced reaction and for that balanced reaction you will represent the cell taking C1 and C2। anything anybody wants to ask? अगर आपको पहले वाला डायग्राम वाला पार्ट इतना क्लियर नहीं है चलेगा, ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए। पूरा चैप्टर में ये चलना है till the time I'm doing electrochemical cell। लिखो for the reaction given below represent the electrochemical cell। For the reaction given below represent the electrochemical cell। ये अब इस फुल सेल रिएक्शन से तुमने ये चीज बनानी है। टेक योर टाइम। Ni निकल। पहले आइडेंटिफाई करो इस रिएक्शन को देख के कि भाई कौन एनोड है, कोई बोलेगा नहीं। एंड देन विच वन इज द कैथोड। टू ऊपर लगा है, सिल्वर को मैंने 2 लगाया है, यहाँ पे ऊपर है देखो, यहाँ पर सिल्वर के साथ 2 लगा है बट रिएक्शन में नहीं आएगा, ये रिप्रेजेंटेशन में कोई स्टोइचियोमेट्री नहीं आएगी। C1 एंड C2 ले लो, 1 मोलर ले लो, अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। सो एनोड कौन है? 0 2 + 3, so it is Al solid, Al3 positive aqueous taking the concentration suppose as C1, then cathode Ni2 positive, C2 and ये 1 मोलर लिख ले, 0.1 मोलर लिख ले। अभी तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। मुझे एनोड का कैसे पता लगा? जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो एनोड है। ऑक्सीडेशन इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? इसका कितना है? तो 0 से +3 इंक्रीज है ना, तो ये एनोड है। ये पहले आया, ये पहले लिख दिया, ये बाद में आया, ये बाद में लिख दिया। फिर मैंने आइडेंटिफाई किया कैथोड, ये +2 में है और ये 0 में है, तो +2 to 0 इज रिडक्शन, तो ये आ गया +2 एंड देन कम्स द निकल। क्लियर?
राइट ऑन द रिएक्शंस। पहले चेक करो ये सेल सही है, अपने आप देखो, टेक योर टाइम। ऐसे थोड़ी लगता, मुझे नहीं लग रहा। ऑक्सीडेशन नंबर्स वगैरह के हिसाब से देखो, मैं एनोड में जो बना रहा हूं क्या वहां ऑक्सीडेशन हो रही है, कैथोड में रिडक्शन हो रही है, दैट्स इट। गैस वगैरह की टेंशन मत लो, सब चलता है। तो लिखो रिएक्शन एट एनोड, कैथोड एंड द फुल सेल रिएक्शन। हाँ, ये कौन से स्कूल की ड्रेस है? माउंट कार्मल। हो गया किसका? रंधावा। एक का होगा तो दूसरे का तो होगा ही साथ में। गुड है, हो गया। करें स्टार्ट। सो बोलो क्या लिखना है? नोड Cl नेगेटिव पहले लिख के रख लेते हैं, देन कम्स द कैथोड। बोलो क्या लिखूं? Br2 चेंजेस टू, अब बताओ क्या क्या चेंज, क्या क्या करना है। यहां पे क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, यहां पे 2 किया तो यहां पे 2 आ गया, यहां Br2, यहां पे 2, यहां पे 2 आ गया। दिस गेट्स आउट 2Cl नेगेटिव, Br2, Cl2, 2Br नेगेटिव। लेफ्ट में ब्रोमीन के कितने एटम्स हैं? इधर कितने हैं? एटम तो बराबर होने चाहिए ना। डन है। किसी को कोई डाउट है? 2 क्यों आया, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों आया? ठीक है, बिकॉज आपको पता है जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो सिंगल एटम के लिए होता है। यहां पर Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर इज, इट मींस बोथ Cls आर 0। तो अगर यहां पे 2 Cl है तो यहां भी 2 Cl होने चाहिए। एक Cl के लिए 1 का चेंज, फॉर 2 इट बिकम्स 2 का चेंज, एंड सेम अप्लाइज टू द रिडक्शन हाफ। अब यहां पर एक छोटी सी एडिशन कर रहा हूं, अभी लिख रहा हूं, एक्सप्लेन बाद में करूंगा। प्लेटिनम, ये जब मैं तुम्हारे को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कराऊंगा उस टाइम एक्सप्लेन करूंगा। प्लेटिनम का रिएक्शन में कोई लेना देना नहीं है, बट अगर आपका इलेक्ट्रोड गैसियस है तो प्लेटिनम का साथ लेना पड़ता है फॉर दिस ऑल टू हैपन। बिकॉज एक गैस कहां पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगी या गेन करेगी? सरफेस तो चाहिए ना उसको, वो सरफेस कौन प्रोवाइड कर रहा है? प्लेटिनम। वाई प्लेटिनम इज सिलेक्टेड नॉट आयरन? बिकॉज अगर आयरन लेंगे तो आयरन तो रिएक्शन में रिएक्ट करके FeCl2 बनाना शुरू हो जाएगा, FeBr2 बनाना शुरू हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी प्रेफर्ड प्लेटिनम। राइट है ये। अब देखो प्लेटिनम इज अ कॉस्टली मेटल, तो अगर उस कॉस्टली मेटल को मैं यूज कर रहा हूं, इसका मतलब है इन जो सेल्स हैं दे मस्ट बी यूजफुल इन माय लाइफ समवेयर।
if I'm ready to invest platinum here, so returns will also be high from them. So जो हम electrochemical sell कर रहे हैं, they are very useful. That you'll come to know at the end of the chapter. Done है? Are you very clear about the representation? So जो left में लिखा गया है वो क्या है? जो right में? And what the two lines indicate? Electrons flow from anode to, and the current will flow from. It's clear. Write down now. Electrode potential. Electrode potential. बातें पता नहीं क्यों होती हैं, 1.5 घंटे की कंसंट्रेशन नहीं है तुम लोगों की. Anybody would like to tell what does the word potential means? Potential means the caliber, the ability. Electrode की ability. बताओ electrode की क्या ability है? What is the ability of anode? To lose electrons. What is the ability of cathode? इसी को बोलते हैं electrode potential. So write down the ability of an electrode. The ability of an electrode to either lose. The ability of an electrode to either lose or gain electrons is called as electrode potential. देखो ये है, ये क्या है? वेरी गुड. क्या ये काम करेगा? अकेला कोई हाफ सेल काम नहीं करेगा. इट नीड्स हेल्प. कौन आया? और वो हमने वही ले लिया अपना कॉपर डिप्ड इन कॉपर, and I hope everybody knows what is it. क्लियर है? नेगेटिव पॉजिटिव. अब बताओ यहां पर जिंक क्या कर रहा है? जिंक इज चेंजिंग इनटू Zn2 positive. Copper 2 positive are changing into. Now question arises, why zinc goes as Zn2 positive and copper 2 positive comes to copper? Why not the opposite happens? है ना? तो क्यों जिंक कॉपर के साथ जिंक से Zn2 पॉजिटिव जाता है एंड वेरी सेम कॉपर व्हेन कनेक्टेड टू जिंक कॉपर +2 से कॉपर जाता है? कुछ तो होगा. अब बता रहा हूं टेक्निकली क्या है. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयंस. इस इलेक्ट्रोड और इस आयन के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? इस इलेक्ट्रोड और इसके आयंस के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? दैट इज कॉल्ड एज. अब वो पोटेंशियल डिफरेंस किस टाइप का है कि इट प्रेफर्स गोइंग दिस साइड एंड इट कम्स दिस वे. दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज. लगा पता कि नहीं ये? सो राइट डाउन और the electrical potential difference, the electrical potential difference between a metal, electrical potential difference between a metal and its ions in the solution, between a metal and its ions in the solution is called as electrode potential. और सिंपल लैंग्वेज में पहले बता चुका हूं, एक इलेक्ट्रोड की एबिलिटी टू एदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने टाइप्स का होगा?
So लिखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑफ टू टाइप्स. Electrode potential is of two types. हो गया. राइट ऑन द फर्स्ट कौन सा आ जाएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. सेम इन द सेंस, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का. नो, जब जिंक Zn2 पॉजिटिव है, यहां पर Ag पॉजिटिव है तो 1 का है. अगर यहां एल्यूमिनियम कनेक्ट कर दूं, Al3 पॉजिटिव है. वो डिफरेंस, तुम इस चीज को डिफरेंस मत माना प्लीज. जिंक और Zn2 पॉजिटिव, ये चीज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं है. यू आर थिंकिंग दिस. ये ऑक्सीडेशन नंबर चेंज है. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तुमने किया नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस किया होगा फिजिक्स में, ठीक है. इस न्यूट्रल जिंक और इसके आयंस के बीच में जो भी पोटेंशियल है, जो वोल्टेज का डिफरेंस है, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. प्लीज डोंट रिलेट इट टू द ऑक्सीडेशन नंबर. इट्स नॉट कि हियर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 2 वोल्ट्स. ये तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज है. जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अभी थोड़ी देर में जब कैलकुलेट करेंगे तो ये है. इसका मतलब है जिंक और Zn2 पॉजिटिव आयंस के बीच में इतना पोटेंशियल डिफरेंस है. और जब कॉपर 2 पॉजिटिव का भी थोड़ी देर में मेजर करेंगे, दैट विल बी दिस, राइट. सो दैट इज प्लस 0.34 वोल्ट्स. अब देखो डिफरेंस है ना, इसका नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है. दैट मेक्स कि कौन एनोड बनेगा, कौन कैथोड बनेगा. बट दैट्स गुड. आपके माइंड में डाउट है, यू शुड आस्क इट. अदरवाइज आई विल जस्ट थ्रू आउट द लाइफ, मेरी लाइफ में यही रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस. दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंस. ये अभी हमने कैलकुलेट करने हैं थोड़ी देर में. द वर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्लियर है? सिंपल लैंग्वेज में, एक आपका जो इलेक्ट्रोड है, क्या वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है या इलेक्ट्रॉन ले सकता है, उसकी इस एबिलिटी को, क्रिकेटिंग पोटेंशियल वर्ड सुना है ना, द एबिलिटी टू प्ले क्रिकेट. तो पोटेंशियल वर्ड मींस एबिलिटी, एंड इलेक्ट्रोड इज द एनोड और कैथोड, either lose electrons or. So पहला कौन सा करो डिफाइन? व्हाट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? The ability of an electrode to lose electrons. The ability of an electrode to lose electrons is called as oxidation potential. The ability of an electrode to lose electrons, Zn solid changing into Zn2 positive, does it represent oxidation potential? Cl negative aqueous changing into Cl2 gas, does it represent oxidation potential? है ना ये. Copper solid changing into copper 2 positive by losing 2 electrons, does it represent oxidation potential? और इसी को जब रिवर्स करके लिख दोगे, that will become reduction potential. Loss of electron is oxidation. जब ऑक्सीडेशन होती है तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है 0 to -1 to 0. 0 है ये, 0 to. So in all the 3 cases, oxidation number is increasing. Electrons are being lost. अब लिख लो अपने आप रिडक्शन पोटेंशियल. एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, और इसी रिएक्शंस को रिवर्स करके लिख लो. हो गया?
फिर सोना है? हाँ। कौन सी? करो यार, ये कर रहा है, इसको पूछ। ये तो इधर से हो जाएगी। नहीं, अब सर आप नजर नहीं आ रहे, बहुत अच्छा लग रहा है? उधर से, कहां से? उधर से करना कुछ। आज मुंबई इंडियंस। सीएसके कुछ भी जीत जाए, आईपीएल नहीं जीतने देंगे हम उसको। मैं तो हर दिन देखो नई टीम को सपोर्ट करता हूँ, तुम्हारी तरह थोड़ी है। अब ठीक है, ये ऑन कर, ये बंद कर, वो कर। अब ठीक है, ये लग गया पता? ऑक्सीडेशन रिडक्शन पक्का। अब बताओ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कैसे करते हैं? ठीक है, लिखो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, पहले तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्ड है वो हाफ सेल के लिए वैलिड है कि फुल सेल के लिए वैलिड है? हाफ सेल के लिए वैलिड है। जो यहां पे 1.10 है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं है। ठीक है, अब ये देखो, दिस इज ये, इज इट अ हाफ सेल? और इस हाफ सेल की एबिलिटी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन इज बीइंग टॉक्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब मुझे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, कैन आई? ये तो काम ही नहीं करेगा, because half cell does not work alone because oxidation and reduction always occurs. तो अगर मुझे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है तो इसको करना है इलेक्ट्रॉन लूज और गेन, एंड इट्स नॉट रेडी। ये तब तक इलेक्ट्रॉन लूज और गेन नहीं करेगा जब तक इसके साथ वाला इज रेडी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। अगर ये लूज कर रहा है तो उसको गेन करने हैं, ऑपोजिट। बट अकेला हाफ सेल तो काम ही नहीं करता। सो लिसन टू मी, इफ आई हैव टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आई फेस सम डिफिकल्टीज। फर्स्ट वन, एक हाफ सेल अकेले काम नहीं करता। अब बताओ इससे मैंने काम करवाना है, व्हाट शुड आई डू? आई शुड कनेक्ट इट टू अनदर हाफ सेल। सो द सेम स्टफ आई डिड, आई कनेक्टेड इट टू द अपना फेवरेट कौन सा हाफ सेल? कॉपर। और जब मैंने इसको कॉपर के साथ लिंक किया, यहां पर वैल्यू आ गई। अब बताओ ये जो 1.10 है, इज इट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक? इज इट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर? ये तो इन दोनों का क्यूमुलेटिव हो गया। सो व्हाट प्रॉब्लम आई एम फेसिंग इज कि अगर मुझे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना या अकेले इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना, ये अकेले काम नहीं करते हैं। एंड व्हेन आई कनेक्ट देम टुगेदर, then whatever the value I'm getting is the cumulative value. So in both ways I am not able to measure the electrode potential. तो यहां पे अब मुझे एक ऐसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिजाइन करना है जो हम जिसको बोलेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और उस इलेक्ट्रोड का अपना पोटेंशियल है ये। कितना? उसका पोटेंशियल है 0। तो यहां पर जो भी वैल्यू आएगी वो दूसरे की वजह से आएगी। यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, सो लिखो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल involves the following difficulties. The measurement of electrode potential involves the following difficulties. First one, a half cell does not work alone. A half cell does not work alone
And second, when it is connected to another half cell, when it is connected to another half cell, the value we get is the cumulative value, not the individual value. The value we get is the cumulative value, not individual value. दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए ये? यस और नो? अब नीचे लिखना, in order to solve this problem, in order to solve this problem, we have designed, in order to solve this problem, we have designed a reference electrode. We have designed an reference electrode whose potential is ये. We have designed a reference electrode whose potential is 0 volts. So I'm writing it as 0.00 volts. And this electrode is this electrode is she. ठीक है? It is standard hydrogen electrode or Ni. What could it be? कोई नॉर्मल बात भी की तुम लोगों ने? It's normal hydrogen electrode. Standard hydrogen electrode, NH. इस एक ही का नाम है ये, standard hydrogen electrode और normal hydrogen electrode और reversible hydrogen electrode. Standard hydrogen electrode, normal hydrogen electrode and reversible hydrogen electrode. है? बता रहा हूं ये, अभी तो नाम ही बताया है. जितनी इसकी इंट्रोडक्शन है वो समझ आई. ये हाफ सेल है, एक काम कर रहा है ये नहीं. बोलता यार ऑक्सीडेशन करूं या रिडक्शन करूं, साथ में कोई होगा तभी होगा. एंड व्हेन कनेक्टेड टू अनदर हाफ सेल, वैल्यू ना इसकी आई ना इसकी आई, फिर हमें एक ऐसा इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा जिसका अपना पोटेंशियल 0 है, एंड दैट इज, अब ये देखो, दिस इज, अब सुन लेना इसको ढंग से. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हाइड्रोजन की बातें हैं यहाँ पे. hydrogen gas at 1 atmosphere. This is the copper wire which it is connecting to the another half cell. Now this is a platinum foil coated with कर लो बातें. ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है. इसमें अब आप बताओ, एक इलेक्ट्रोड के अंदर सब्सटेंस की कौन सी फॉर्म चलती है? ऑक्सीडाइज्ड एंड. तो हाइड्रोजन की अगर ये फॉर्म एक है तो मुझे बताओ हाइड्रोजन की दूसरी फॉर्म कौन सी है? आई वुड बी वेरी इंप्रेस्ड. जैसे जिंक की एक फॉर्म है Zn और दूसरी है Zn2 पॉजिटिव,
If one of the form of hydrogen is H2, another one will be H positive. और आपको पता है एक हाफ सेल तो तभी बनता है जब ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म्स आती है। तो एक फॉर्म ये आ चुकी है, अब मुझे दूसरी फॉर्म लेनी है। टेल मी हाउ शुड आई टेक इट? शाबाश। कौन सी बोली दूसरी फॉर्म? H पॉजिटिव, दैट्स करेक्ट। कहां लूं H पॉजिटिव? हेल्प मी आउट। किसी एसिड से, दैट्स करेक्ट। सो अब मैंने क्या किया, यहां पे लिया 1 मोलर HCl which is giving me 1 mole of H positive ions. Can you see the two oxidized and the reduced form of the element? बन गया ना इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम नजर आ रहा है, ठीक है। और लिखो ये प्लेटिनम की फॉइल है, वेरी थिन शीट ऑफ प्लेटिनम, जिसके ऊपर हमने प्लेटिनम की ही कोटिंग की हुई है। क्यों की है? यू विल कम टू नो अबाउट इट। अगर इसको रिएक्ट करना है, कहां करेगी? Now this H2 wants to change to H positive, it needs to lose electron, तो गैस आएगी, पहले इसके सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब होगी। I'm using the word absorb, I should use the word adsorb. Adsorb होता है जो सरफेस पे रह जाएगा, तो ये हाइड्रोजन आएगी, इसके सरफेस पे रिटेन होगी, फिर इसने जो भी इलेक्ट्रॉन लूज या मतलब जो भी H पॉजिटिव करेगा या H2 करेगा वो यहां आगे करेगा। You will come to know about it. कुछ समझ आ रहा है ये? ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन की फॉर्म्स चलेंगी। हाइड्रोजन की दो फॉर्म्स हैं, एक है H2 और दूसरी है H पॉजिटिव। ये मैंने यहां से हाइड्रोजन गैस पास कर ली, जब जरूरत पड़ेगी यहां से हाइड्रोजन गैस आएगी, बबल इन होगी, इसके सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगी। और जब इसको काम करना होगा, ये H पॉजिटिव आयन इसके सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा। अभी जब मैं इसको दूसरे हाफ सेल से कनेक्ट करेंगे, यू विल गेट इट वेरी क्लियर। लगा? बताइए। Let me show you the makeup. So standard hydrogen electrode contains what? A platinum foil coated with, dipped in 1 molar HCl, and there is an inlet from where the hydrogen gas is passed at a pressure of, ये SHE के अंदर है, but pressure ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट जब यहां 0.1 आ जाएगा और यहां 0.1 आ जाएगा तो ये SHE नहीं रहेगा, इट विल सिंपली बिकम एन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो जो स्टैंडर्ड वर्ड है वो इसके लिए और इसके लिए है। अभी पहले मैं आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मेजरमेंट बता दूं, देन वी विल कम टू व्हाट आई मीन बाय द वर्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। SHE क्लियर टू एवरीवन? अब बताओ एक इलेक्ट्रोड जिसका तुम पोटेंशियल कैलकुलेट कराना चाहते हो, जिंक और कॉपर को छोड़ लो, बिकॉज मैं तो जिंक से करके दिखा दूंगा। मैग्नीशियम और पिज्जा ऑर्डर नहीं हो रहा है यहाँ पे है, ठीक है। जिंक से करूं, जिंक से कर लेता हूं। इफ देन आई विल डू इट विद कॉपर ऑल्सो, मैग्नीशियम ऑल्सो। तो बताओ अगर मुझे जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, व्हाट शुड आई डू? आई विल टेक अनदर हाफ सेल। किसका? जिंक का हाफ सेल बनवाओ मेरे से। क्या लिया? जिंक रॉड, और उसको डिप कर दिया। Zn2 पॉजिटिव आयन लिख दूं, और उसके आगे देखो क्या लिखा। इसका मतलब जो जिंक का पोटेंशियल आने वाला है वो भी स्टैंडर्ड होने वाला है। कर दिया कनेक्ट? कैन यू सी द डिफ्लेक्शन? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है। आई से इट, गिव माई 10-15 मिनट्स, अगर ढंग से देख लोगे ना तुम्हारे को ये बहुत अच्छे फ्लो में चलेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द्वारा से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही बन रहे हैं, बट यू आर गोइंग टू गेट न्यू थिंग्स हियर। एनोड लग गया? पता कौन है? कौन? ये आ गया कैथोड। The deflection, the magnitude is 0.76. अब तो उसमें इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? तो सारा उसी की वजह से है ना, ठीक है। एंड यू नो इस सॉल्ट ब्रिज क्लियर हुआ ये। अब ये चीज बता रहा हूं, दिस इज जो ये आ रहा है, ये तो पूरे सेल का पोटेंशियल है ना, तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा E नॉट सेल, वेयर E मींस EMF ऑफ द सेल। पहले नॉट हटाते हैं,
EMF of the cell. The word EMF, you know, stands for electromotive force. So EMF is for the full cell, and what is for the half cells? Electrode potentials. हाफ सेल का होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फुल सेल का होता है EMF, और जब उसके ऊपर नॉट लग गया इट बिकम्स स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल. ये लिख लेंगे वर्ड्स हम बाद में. E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड. ठीक है. E नॉट सेल कितना है? 0. कैथोड कौन? हाइड्रोजन. दैट इज E नॉट H2H पॉजिटिव. चलो सुन लेना सारी चीजें. E नॉट मैं कर रहा हूं, मैं सब कुछ बताऊंगा. आई विल ट्राई माय बेस्ट. राइट. अब एक चीज देखो. E Zn2 पॉजिटिव एंड E नॉट लगा रहे हैं तो नॉट से चलते हैं. Zn2 पॉजिटिव Zn. एक बार अपने आप देखने की कोशिश करो क्या डिफरेंस है. पहले मुझे बताओ ये इसको मैं EMF बोलूं? Should I call this as EMF? नहीं, ये तो हाफ सेल है. तो here E stands for electrode potential. जब सेल लगा दिया तो that becomes EMF, और जब हाफ सेल लिखा हुआ that is. अब बताओ ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन वाला लग रहा है कि रिडक्शन वाला? जिंक गोइंग फ्रॉम 0 to +2, Zn +2 गोइंग टू, ये कौन सा है? What I want to say, from today onwards, time is 5:35. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का दूसरा नाम है रिडक्शन पोटेंशियल. चाहे जिंक एनोड एक्ट करता रहे, जिंक वो कर रहा है ना एनोड, और इसका पोटेंशियल जब भी बोला जाएगा इट विल बी. सीधी सी बात है, बिकॉज इसकी ऑक्सीडेशन में बातें करते रहो, इसकी रिडक्शन में बातें करते हो, वी कैन नॉट कम टू अ पॉइंट. एक का फिजिक्स का टेस्ट ले लिया, एक का केमिस्ट्री का टेस्ट ले लिया. मैं उन दो बच्चों के बारे में कोई व्यू पॉइंट नहीं दे सकता. सम माइट बी गुड इन फिजिक्स, सम माइट बी गुड इन केमिस्ट्री, बट दोनों का फिजिक्स का टेस्ट लें या केमिस्ट्री का टेस्ट लें, देन आई कैन मेक अ व्यू पॉइंट. सेम इज हैपनिंग हियर. तो अगर इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालते रहो, इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालते रहो, तो वो नहीं रहेगा. वी आर मेकिंग द थिंग्स यूनिफॉर्म, सो द कन्वेंशन इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. मैं यहां से बोल रहा हूं, यू आर हेयरिंग इट एज रिडक्शन पोटेंशियल, यू स्पीक अप रिडक्शन पोटेंशियल, आई मीन. तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात नहीं की जाएगी, होता है ये. तो अगर आपको पेपर में ये दे दिया जाए तो पहले इसको आपको इन्वर्ट करना है. यू हैव टू कन्वर्ट द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इनटू. नाउ सी द पोटेंशियल आई एम ट्राइंग टू राइट, आर दे रिडक्शन? पहले इसको बोलो क्या है ये? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तुमने बोला स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आई हर्ड इट एज रिडक्शन पोटेंशियल. H पॉजिटिव का 0 जाना, प्लस से 0 जा रहा है ना, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. +2 से 0 जा रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. Was I clear? Let's put up the values now. 0.76 कितना? 0 माइनस E नॉट Zn2 पॉजिटिव. तो यहां से E नॉट Zn2 पॉजिटिव Zn comes to be minus 0.76 volts. Take your time. हम कॉपर का एग्जांपल ले लेंगे बाद में, डोंट वरी अबाउट दैट. Why only reduction of Why 1 carbon is called as meth? Why 2 carbons is 3 prop?
है कोई रीजन? रूल है ना, रूल है कि बास्केटबॉल में 5 प्लेयर खेलेंगे, छड़ा खिलाने की कोशिश करके देख लो। सो देयर इज अ रूल। तो हमें दोनों में से एक चूज करना था, पोटेंशियल। अंडरस्टूड एवरीवन? डायग्राम नजर आया? लेट्स स्टेप बाय स्टेप। ये चीज लाइफ में नहीं लगी आज, क्या फायदा है इसकी लाइफ में, मेरी लाइफ में इसका? इसकी लाइफ में तो मेरा कोई फायदा नहीं है। व्हाट्स द यूज? ये हमें सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कराएगा वन बाय वन। यस और नो? अभी तो एक ही किया है जिंक। पहले इसका मेकअप क्लियर है। हाइड्रोजन गैस बबल इन की जाती है एंड वी हैव अ सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर H पॉजिटिव आयंस which preferably comes from 1 molar HCl and a platinum foil is doing all the work. अभी जब मैं रिएक्शन लिख के बताऊंगा you will get it all clear. ठीक है, दो हाफ सेल्स, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उसको कनेक्ट कर दिया, फिर सारी की सारी नजर चलेगी नीडल पे। नीडल जिस तरफ को डिफ्लेक्ट हुई वो बन गया एनोड एंड द अदर वन बिकम्स, जो ये वाला चीज है, दिस इज कॉल्ड एज द ईएमएफ ऑफ द सेल। आई एम टेकिंग स्टैंडर्ड कंडीशंस, तो नॉट आएगा। अगर इसमें से एक भी कंडीशन चेंज होती है नॉट हट जाएगा, और ये ईएमएफ रहेगा, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स रहेंगे। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, व्हाट इज इट? Standard electrode potential of cathode, standard electrode potential of, and by conventions electrode potentials are always reduction potentials. So I am writing the cathode, that is SHE in the reduced form, and the zinc also in the reduced form. इसका potential जहां भी लिखा होगा 0 आएगा। I get the standard electrode potential of zinc. अब ये zinc की लाइफ में एक कांस्टेंट है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस जिंक का पोटेंशियल इतना ही होगा, बट अगर आप इसको 1 मोलर से चेंज कर दोगे ये वैल्यू चेंज होगी। एम आई अंडरस्टूड हियर? पक्का? किसका? हाइड्रोजन, पता क्या, आप देखो हाइड्रोजन एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर लेता है, गेन भी कर लेता है। सो दैट्स व्हाई ये अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोड अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है। बट अगर जिंक और कॉपर लगो तो नहीं पता लगेगा, बट इसके विद रिस्पेक्ट टू जिंक लगाओगे तो वो इलेक्ट्रॉन लूज ही करेगा, बिकॉज नॉन मेटल है ये। तो उसका पोटेंशियल लग गया ना पता, लूज, एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ये क्लियर है? कुछ नोट नहीं होगा अभी। प्लेटिनम फॉइल हाइड्रोजन में जब भी, अब यहां से तू Cl2 गैस पास कर तो वो प्लेटिनम फॉइल लेनी पड़ेगी। यहां से Br2 पास करेगा, वो तो लिक्विड है, मैं बता रहा हूं वो। ठीक है, रिएक्शन स्टार्ट करें। मुझे बताओ रिएक्शन, रिएक्शन एट एनोड। चलो शाबाश। रिएक्शन एट एनोड, क्या एनोड आइडेंटिफाई हो चुका है? कौन है वो? बोलो रिएक्शन दैट देन चेंजेस इनटू, ठीक है। ये देखो अब ऐसा नहीं है कि वो जिंक कॉपर, ये वही सेम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल चल रहा है ये। उसको यू कैन अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फ्रॉम हियर आल्सो। क्या हुआ? जिंक रॉड धीरे धीरे डिटेरियोरेट हुई, Zn2 पॉजिटिव आ गए, एंड हियर गो द इलेक्ट्रॉन्स, वो वाले। और ये इलेक्ट्रॉन देखो यहां से होते होते एंड दे रीच हियर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कॉपर वायर दे रीच द प्लेटिनम फॉइल। प्लेटिनम फॉइल पे कौन सा चार्ज आ गया? अब बताओ कौन सा आयन है जो अट्रैक्ट होने वाला है? H पॉजिटिव का रोल आ गया ना। यानी कि इस वाले हाफ सेल में जब इसको जिंक के साथ कनेक्ट किया तो इसका कोई यूज नहीं हुआ। ये तो मैंने बताया कि ये जरूरत पड़ेगी तो आ जाएगी अपने आप, अदरवाइज यहां पर कौन यूज हो रहा है? बोलो क्या रिएक्शन हुआ कैथोड पे? H पॉजिटिव बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू, ये 2 आ गया, यहां 2 बन गया, इलेक्ट्रॉन्स कैंसल आउट, जिंक सॉलिड, 2H पॉजिटिव चेंजेस टू, शाबाश, लगा पता? अब बताओ इसका पता लगा तुम्हें? अब बताओ अगर ये प्लेटिनम फॉइल ना हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? ठीक है ना? तो दैट्स व्हाई आई नीड अ सरफेस। तो प्लेटिनम का पहला यूज क्लियर हुआ। ठीक है, अब आप बोलोगे सर व्हाई प्लेटिनम? बिकॉज प्लेटिनम इज अनरिएक्टिव।
अगर वो रिएक्टिव होगा तो वो सॉल्यूशंस के साथ ही रिएक्ट होना शुरू हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई वी आर प्रेफरिंग अ प्लेटिनम फॉइल. अंडरस्टूड और नॉट? तो कोई भी गैसियस इलेक्ट्रोड होगा तो प्लेटिनम आपको नजर आएगा, सिर्फ यहां पे ही चेंज है. अब बताओ अगर क्लोरीन का इलेक्ट्रोड यहां पर क्या होगा? Cl2. यहां पे क्या होगा? Cl नेगेटिव. वो Cl नेगेटिव किससे आ रहे हैं? दैट विल ओनली बी द डिफरेंस. अंडरस्टूड और नॉट? वन बाई वन. हाँ, कंसंट्रेशन 2 लेंगे तो वो हमने करना है आगे जाके. नर्न्स इक्वेशन है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, बट फॉर द टाइम कंडीशंस आर स्टैंडर्ड. प्लेटिनम फॉइल पे दे आर बीइंग कंडक्टेड एंड दे रीच द प्लेटिनम फॉइल. एंड किसको? इलेक्ट्रॉन यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट हुए ना, है? तो जब यहां पे H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट हुए तो कोई लूज भी करेगा. अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं होंगे तो यहां से लूज भी नहीं होंगे, बिकॉज लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स साइमल्टेनियसली. और लेट इट बी एनी क्वेश्चन एनी टाइप, कम प्लीज. कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड है तो 1 मोलर चाहिए. अगर ऊपर नॉट लगानी है तो, अगर नॉट नहीं लगानी है तो चेंज कर लो, तो चेंज हो जाएगी. अगर यहां पे आप 0.1 मोलर कर दोगे ना Zn2 पॉजिटिव तो ये वैल्यू कुछ और आएगी. बट मैं जो आपको वैल्यू दे रहा हूं वो स्टैंडर्ड वाली है. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दैम एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. यस और नो? और ये हाफ सेल है, ये हाफ सेल है, ये फुल सेल है. इस फुल सेल में आपको पता है हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन तो है ही नहीं है. दिस ऑल वैल्यूज बिकॉज ऑफ जिंक है, बिकॉज ये हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है. तो अगर मुझे एक इलेक्ट्रोड बनाना है तो उसकी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म लेनी है ना. तो हाइड्रोजन की रिड्यूस फॉर्म है H2 और ऑक्सीडाइज फॉर्म है H पॉजिटिव. यस और नो? कैन यू रिप्रेजेंट दिस हाफ सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? रफ में ट्राई करो. याद है वो लिखे थे Zn2 पॉजिटिव, 2 लाइनें, कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर. इस वाले हाफ सेल को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो. कौन? वैल्यू आई है, कॉपर की पॉजिटिव आने वाली है, उसका आगे जाके आएगा सिग्निफिकेंस. एवरीथिंग विल बी टेकन. अभी सिर्फ ये आने दो. इसका मतलब है जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है. इसका ऑपोजिट करो. इसका मतलब है जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जिंक वही तो करता है. तो नेगेटिव तो यहां पे आई है, यहां पे थोड़ी थी. नहीं, ये तो पॉजिटिव ही है, ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही है, बट उसका पोटेंशियल नेगेटिव है. हाइड्रोजन 0 है और लेते नहीं है. रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज SHE. ओनली SHE इज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड. तो इफ यू पीपल सुनो, इफ यू पीपल आर डिफरेंट एलिमेंट्स, क्लोरीन, मैग्नीशियम, जिंक, गोल्ड, आप सबका स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालने के लिए मैंने किसको यूज किया है? 1 by 1 you people come, get connected to the SHE, the value comes, and this. क्या कर हो गया? प्लेटिनम फॉइल के ऊपर हमने प्लेटिनम की कोटिंग की ताकि उसका सरफेस रफ हो जाए, एंड रफनेस इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, और सॉलिड की रिएक्टिविटी बढ़ती है. एनीबॉडी वांट्स टू शो? नहीं. तुम्हारे मोबाइल्स क्यों नहीं सबमिट हो रहे हैं? मजाक करते करते कर लिए. प्लस 2 भी कर ही लेगा. नहीं
करो करो रिप्रेजेंट, 2 हैव डन इट, दैट्स करेक्ट। अब ये देखो, किसको लिखूं पहले, फिर ब्रैकेट में एक्वस आ गया। अब H पॉजिटिव, H2 और मुझे तो यूज तो H पॉजिटिव ही हुआ ना, निकल से मुझे तो, मेरा आयन तो जो रिएक्शन में इन्वॉल्व है वो H पॉजिटिव ही है। हो गया। एक बार देखो, ये एनोड, सबको क्लियर, ये कैथोड, ये नया वर्ड आया प्लेटिनम, क्लियर टू एवरीवन? नाउ हैव अ लुक एट इट। बुक्स में दिए हुए केसेस, यू कैन गो थ्रू इट, बताने की कोई जरूरत नहीं है, बट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। हाँ आगे आएगा, आई विल एक्सप्लेन दैट। So if I have to find the electrode potential of a electrode, what is your recommendation? What should I do? I have to connect it to a standard hydrogen electrode, which is that. And from there we get the value. This is E naught cell. E naught cell is equal to E naught cathode. Done है। एक और एग्जाम्पल करते हैं, you will hopefully get it clear then. ये देखो, ये देखो, कौन सा इलेक्ट्रोड हो गया अब ये? कॉपर। एंड सी द डिफरेंस नाउ। है ना? तो ऐसा नहीं कि जो लेफ्ट में है वो एनोड ही होगा। दिस इज द नीडल विच डिसाइड्स। कॉपर बन गया ना कैथोड, ठीक है। ये वाली चीज स्टार्ट करते हैं। ई नॉट सेल कितना, कैथोड कौन, कैसे लिखूं? ई नॉट Cu2 पॉजिटिव, +2 से 0 रिडक्शन, बिकॉज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑलवेज रिडक्शन, माइनस E naught H positive H2 plus 0.34, that is equal to E naught copper 2 positive copper minus 0.00 volts। खत्म हो गया ये। E naught copper 2 positive copper comes out to be, अब देखो कॉपर का पोटेंशियल आया ना पॉजिटिव। अब बताओ कॉपर विद रिस्पेक्ट टू SHE के एक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव आया ना, और जिंक विद रिस्पेक्ट टू SHE के एक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव आया ना। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आपको बताएगा कि कौन एनोड और कौन कैथोड है। यस और नो? रिएक्शंस बोलो। एनोड कौन, हाइड्रोजन है, बताओ रिएक्शन। H2 gas changes into 2H positive। अब देखो ये यूज हुआ ना, जिंक के साथ तो H पॉजिटिव आयन यूज हो रहे थे। अब देखो क्या होगा, this H2 gas will come and that will get absorbed on the surface of platinum। और जब ये हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम के सरफेस पे है, it will get oxidized। H positive ions will move to the solution and electrons through this very circuit they will reach here, and as the electron reach here this rod will become, और यहां पे जो copper 2 positive ions है they will be, ठीक है। So what is cathode now? Copper 2 positive plus 2 electrons, that forms copper solid। Yes or no? Yes, अब बताओ रिप्रेजेंटेशन।
एनोड कौन? H2 चेंजिंग इनटू H पॉजिटिव। यहां पे आपको पता है प्रेशर है तो 1 एटमॉस्फेयर लिख रहा है। कम्स द सॉल्ट ब्रिज। आगे Cu2 पॉजिटिव 1 मोलर। अगर ये कैथोड एक्ट कर रहा है SHE तो प्लेटिनम सबसे राइट में, और अगर एनोड एक्ट कर रहा है तो सबसे लेफ्ट में, हाइड्रोजन वाले में। मैंने बोला है पिछले केस में हाइड्रोजन यहां पे था ना, तो प्लेटिनम सबसे एंड में लिखा। अब आपका हाइड्रोजन यहां पे है तो प्लेटिनम सबसे लेफ्ट में। अगर ये आपका पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है ये विद रिस्पेक्ट टू SHE कैथोड एक्ट कर रहा है। अगर आपका ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव आता है इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू SHE एनोड एक्ट कर रहा है। दैट विल ऑल बी देयर। फिलहाल तुम ये सारा देखो। अब इसके थ्रू 3-4 चीजें पता लग रही है। एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग, सेकंड वी आर एबल टू कैलकुलेट द पोटेंशियल्स, I am able to see at the reaction, I am able to represent that electrochemical cell. ठीक है? पक्का। अब मैं क्या देता हूं तुम्हारे को, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देता हूं, उसके बेसिस पे आप एक रफ सा डायग्राम बनाओ एंड ट्राई टू राइट एवरीथिंग यू कैन। ठीक है? पर पहले इससे रिलेटेड एनीबॉडी वांट्स टू आस्क, प्लीज डोंट कीप एनीथिंग टू योर माइंड। एंड हो सकता है आपको 40-50% अभी क्लियर हो रहा हो, घर में जाके दोबारा से देखो। इफ रिक्वायर्ड आई विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, बट यू हैव टू टेल मी कि सर मुझे प्रॉब्लम आई है। राइट है? करना ये एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम। इन सारी कैलकुलेशंस के बाद इतना आता है। आप डायग्राम चाहे मत बनाओ, आप मुझे वो वाली कैलकुलेशंस करके दिखाओ। राइट ऑन द रिएक्शन एंड द रिप्रेजेंटेशन। ये एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम का, लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली, या मैग्नीशियम ले लो, E0 Mg2 पॉजिटिव Mg comes out to be ये नेगेटिव है। अब आपको पता है नेगेटिव है तो इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू SHE मैग्नीशियम इज एक्टिंग एज एनोड। अगर नेगेटिव है तो एनोड एक्ट करेगा वो। अभी फॉर द टाइम बिंग ऐसे याद रख लो, N फॉर नेगेटिव, और एनोड में भी तो N आता है। अब ये वाली चीज बनाओ जल्दी से, कोई डायग्राम नहीं चाहिए। ये भी हो गया, ये भी हो गया, और वो भी हो गया। So E0 cell, अब मेरी बात सुनो, जब मैग्नीशियम को SHG के साथ कनेक्ट किया, ये वैल्यू आई वोल्ट मीटर पे, लिख दी मैंने। ठीक है? दैट बिकम्स E0 कैथोड माइनस E0। और मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो नेगेटिव है, इसका मतलब मैग्नीशियम इज एनोड। E0 कैथोड कौन है? H पॉजिटिव H2 माइनस E0 Mg2 पॉजिटिव Mg। ये 0 हो जाएगा, ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव आ जाएगा कि नहीं? यस और नो?
E naught Mg2 positive Mg comes out to be ये। अब बताओ इसके रिएक्शन लिखोगे, रिएक्शन लिखो जल्दी से, एनोड कैथोड एंड रिप्रेजेंट द सेल। प्लेटिनम फिर Mg कर दिया था ना, Mg 2.37 इज Mg। और अगली क्लास आते मुझे बता देना कि सर हमारे को कैलकुलेशन वाला कंसेप्ट दोबारा से कराना है। आई विल डू इट प्रोवाइडेड तुम एक बार घर में जाके ये पढ़ के आओगे आज अच्छी तरह से। अंडरस्टूड? एक बार जल्दी से रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन फास्ट आनी चाहिए। एनोड कौन है और कैथोड कौन है? एनोड कौन है? ये लिखा मैंने Mg2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन आती रहेगी H पॉजिटिव H2 प्लेटिनम, ये चीज आनी चाहिए बस, बाकी लिखते रहेंगे बाद में। दैट्स इट। क्लियर? ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे।